So you mentioned about the inclusion of female farmers in your previous answers. So I just wanted to ask, how is NABARD further building on women empowerment and livelihood development in Uttarakhand? Are there any special projects or grants that you let out? Anything that promotes it? See, when you talk of women farmers, I think they've been there for many years. I mean, the problem that Uttarakhand Hills face is outward migration of people. The young generally move around. There's inclination to join the Indian Army, one, and secondly, with very less employment opportunities available. There's a term which is come to be known with respect to Uttarakhand is feminization of agriculture. When we talk of feminization, this means agriculture is being practiced mostly by women, because either the children are left behind, or the old, or maybe the ex-servicemen who retire from the army and then they settle down over there. But the young farmer people who could be engaged, in agriculture wholeheartedly, as is being done in other parts of the country, it's not so at least in Uttarakhand, and the women. And a problem that women typically face in Uttarakhand is lack of ownership of land, because the land fragmentation and ownership still remains a problem. It's a grey area in Uttarakhand Hills, and that gets compounded when we talk of women farmers. So what could be the alternative? One, aggregating them in kind of groups. Earlier we were doing it through self-help groups, where the linkage to the banks, the SHG linkage to banks for agriculture is not dependent on the land holding, because a typical bank linkage would be in the form of group lending, and that's why that's how the women could get institutional credit from the banks, but this is now being carried forward by SRLM, and we are now focusing on food processing and farmer producer organizations. NABARD has on its own has promoted roughly around 120 FPOs, and a majority of them comprise of women. So when you talk of NABARD's contribution to women empowerment and improving the livelihood of women, I think aggregation of women through SHGs or through farmer producer organizations, or also there's another concept called JLGs, joint liability groups. So this is what NABARD has been focusing, and in fact all development projects are all pilot projects at the district, at the field level, are women centered. सारा का सारा खाद एक साथ निकालना है और उसको छानना है, ठीक है? ठीक, 3 कार्यक्रम हो गए। चौथा आपका ये देख रहे हो, ये क्या लिखा है? कौन करता है मशरूम का कार्य यहाँ पे? मशरूम का कार्य कोई करता है? देखो अभी आप बोल रहे थे, सुनो आप लोग, अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई बंजर भूमि है, ठीक है, और सालों से बंजर पड़ी हुई है, परंतु ऐसे नहीं कि किसी का एक खेत है वहाँ पहाड़ में जाकर के मेरे को उसको नवीनीकरण करना है, उसके लिए पैसे, ऐसा नहीं होगा। थोड़े समय बाद फिर वो थोड़ा सा आगे चला, बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे चला, ठीक है, भगवान ने कहा कि मैं इसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। फिर उसने बोला कि यार पानी तो मिल गया, अब थोड़ा सा खाने के लिए भी मिल जाता, भूख लगी हुई थी, तो क्या हो जाता, तृप्ति हो जाता है ना। कभी हम लोग रास्ते में जाए, कोई हमें एक गिलास पानी पिला दे, कोई खाने के लिए पूछ दे, अब खाने के लिए उसने मांगी 2 रोटी,
ठीक है, तो 2 रोटी प्रकट हो गई। ठीक है, अब उसने सोचा कि यार 2 रोटी मिली, काश इसमें पनीर की सब्जी होती और ये चिकन होता, नॉन वेज होता, सब चीज़ें होती, वो भी मिल जाता मुझे। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, प्रकट हो गया। वो और खुश हो गया कि आज तो पता नहीं, मतलब भगवान सब मेरे पे ही मेहरबान है। ठीक है, फिर वो सोचने लगा यार मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहा हूँ, काश मेरे पास ना धन आ जाता, मतलब स्वर्ण मुद्राएं आ जाती मेरे पास। क्या आ जाती? स्वर्ण मुद्राएं आ जाती। फिर क्या किया उसने, ध्यान किया और क्या हो गई, स्वर्ण मुद्राएं सारी प्रकट हो गई। ठीक है, फिर उसने बोला यार मुझे गांव जाना है, गांव तो बड़ा दूर है, एक बैलगाड़ी होती तो मैं क्या करता, स्वर्ण मुद्राओं को उसमें डालता और अपने गांव ले जाता, कब तक उठा के ले जाऊंगा। तो बैलगाड़ी प्रकट हो गई। अब शाम का समय हो गया। अब शाम का समय जैसे ही हुआ तो उसके ध्यान में क्या आया, यार रात का समय हो गया, कहीं डाकू ना आ जाए और वो मुझे गला ना काट दे। और क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डाकू आए होंगे और क्या कर दिया, गला काट दिया। ठीक है ना, लोभ नहीं किया, उसकी सोच थी ऐसी। अगर वो सोचता कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं तो वो क्या होता, सही सलामत घर पहुंच जाता। अगर वो ये सोचता कि मेरे साथ बहुत सारे लोग आ जाएं जो मेरी डाकू से रक्षा करें, तो सारे के सारे लोग क्या हो जाते, साथ में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सोच का फर्क है। जा रहा था तभी लोग बैठे हुए थे, और जब मैं ऊपर की साइड जा रहा था तभी लोग बैठे हुए थे, झाड़ी माई की मंदिर। ठीक है ना, तो ये कार्य नहीं होना है ना। तो ये काम देखो, आप लोग कुछ करके नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा ना। अगर झाड़ी का मतलब ये कार्यक्रम बता रहा हूँ, इधर देखो आप लोग, इधर देखो, ये कार्यक्रम है मनरेगा के अंदर। मैं ये बता रहा हूँ कि ये कार्यक्रम मनरेगा के अंदर है। मनरेगा से आप इन कार्यक्रम करके लाभ ले सकते हो। ठीक है, परंतु थोड़ा सा अगर झाड़ी काटने वाला काम है, चाहे मछली वाला है, चाहे फलदार वृक्ष का है, चाहे जो भी काम है, अर्थ ये है कि आपको क्या होना, उसका कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने बच्चे की बात बताई ना कि बच्चा कुछ करके दिखाएगा तो माँ बाप लोन कर्ज बात करके भी उसको पढ़ाएंगे, परंतु बच्चा नहीं पढ़ने वाला होगा तो कर्ज बात कर क्यों करना है, अपने लिए बोझ बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसलिए तो बोलते हैं कि अपना करो कमाओ खाओ, जब नहीं पढ़ना उठने लग जाएगा, हो गया। आप लोग एक एक करके ना आके साइन कर लो। आप लोग बैठे रहो, फिर आप चाय समोसे लेके जाना, चाय नहीं छुट्टी नंबर कुछ नहीं लिखा, बड़वा में लिख हुई ना। जैसे बरसात में मुखिया चाल फाड़ का काम करवाता है, जैसे मेरी यहाँ जगह नहीं है चाल फाड़, क्योंकि जहाँ हमारा पानी का स्रोत है खेत है और ऊपर थोड़ा गाय बच्चों भी चलने के लिए है, तो वहाँ लोग ना करते हैं। एक बार करवाया हमने वो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, जैसे मुर्गियाँ हैं, ठीक है, मछली है, तो मछलियों को जीने के लिए नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए चाहिए होता है ना। हाँ जी। तो जो मुर्गी की जो बीट होती है वो एज अ फूड मछलियाँ कंज्यूम करती हैं अपने, ठीक है। तो मुर्गियों का फायदा हो गया। मुर्गियों का फायदा मतलब मुर्गियाँ तो हमें अंडे भी देगी, जो उसकी बीट होगी उससे हम क्या यूज़ कर लेंगे, जो उसकी मैन्योर होगी वो फिश के न्यूट्रिशन के काम आएगी। हाँ जी। ठीक है, फिर मुर्गियाँ भी हमारे काम आ रही है, मुर्गियों की जो बीट है वो भी हमारे काम आ रही है, फिशेस भी हमारे काम आ रही है, मुर्गियों के अंडे भी हमारे काम आ रहे हैं। जी। इस तरीके से इंटीग्रेटेड मॉडल पहाड़ों के लिए सबसे अच्छा मॉडल होता है कि आप एक जगह पे सब चीज़ें कर दो। इस जगह देखोगे आप सब कुछ मिलेगा आपको, मुर्गियाँ भी है, ठीक है। ये पॉली हाउस है, इसमें टमाटर वगैरह लगा रखे हैं। तो आपका मशरूम का हट है, मशरूम फार्मिंग के लिए उन्होंने पहाड़ों के लिए जो लो बजट में बनेगा उस तरीके से बनेगा कि इंसान कोई भी बना दे,
सस्ता सा बनाते हैं और उसमें पराल या पुआल से बनाते हैं, पर उसमें आग लगने का खतरा रहता है, इसीलिए उन्होंने ग्रीन हाउस का वो बना दिया है। इसको इस तरीके से इसमें बांध दिया जाता है। जब आपको इसमें टेम्परेचर कम करना होता है, जैसे अभी गर्मियाँ हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये खिड़कियाँ खोल देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, ये जाली है इसमें, ठीक है। जब हमें टेम्परेचर ठंडी के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, जो ये पर्दा है भागते हैं इसके, तो हम इसको रोल डाउन कर देते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। आजकल क्या है, गर्म है तो टेम्परेचर ठंडा चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ टेम्परेचर ठंडा है, ठीक है। ये टमाटर है आपका, तो वो आके जाते रहते, मॉर्निंग में आते हैं 9 बजे चले जाते हैं, फिर शाम को ही आते हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये होता है कि इसको इसलिए यूज़ किया जाता है पहाड़ों में कि पानी का जो कंजप्शन है ना, वो कम से कम हो और हमारे यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब अगर हम ऐसा पानी लेकर के इसमें पूरा के पूरा पानी डाल दें, तो आधा पानी तो वेस्ट हो जाएगा, जो यहाँ गिरेगा इसको तो ज़रूरत नहीं है ना पानी की। पानी की ज़रूरत किसको है, इस पेड़ को है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, जो पाइप है इसमें छोटे बहुत माइन्यूट होल होते हैं, ठीक है। तो दिन भर क्या होगा, इसमें लगा देंगे तो उसकी जड़ में धीरे धीरे करके दिन में पानी गिरता रहेगा, तो प्लांट के काम भी आ जाएगा। जो पानी होगा वो कम पानी से आप लोग मतलब पूरा का पूरा मतलब 1000 लीटर पानी से आप लोग इसके आराम से सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पानी कंजप्शन मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पानी का कहीं स्रोत नहीं है, ठीक है ना। जितना भी पानी है वो टैप वाटर आ रहा है या थोड़ा बहुत वो इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो जो उसका यूटिलाइजेशन हो जाए वो अच्छे से हो जाए। इस तरीके से ना इसको बांध देते हैं टमाटर निकाले, तभी दिन आप देखो टमाटर भी लग रहे हैं ना आपको जी। तो कम से कम ये 7 फीट तक टमाटर का बेल जाता है, बांधा हुआ है ना इससे, 7 फीट तक जाएगा, अच्छा, पूरा ऊपर तक। पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, एक पेड़ से कम 25 से 30 किलो टमाटर निकल जाएगा, एक ही पेड़ से इतना सारा। ठीक है ना। हाँ जी। अब ये भी देखो ना कि डिस्टेंस कितना है, 2-2, 3-3 फीट के गैप में जो हम लोग घर पे लगाते हैं वो ऐसे डाल देते हैं, सबका सब एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या मिलता है, पेड़ को कम मिलता है, इसीलिए 2-2 फीट के गैप में आपका टमाटर को लगा रखें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हर पेड़ को अपना अलग मिले। हाँ। ठीक है। इजरायली बोलते हैं, इजरायली खीरा बोलते हैं। तो ये अभी पपीते के पेड़ भी लाए हम, अच्छा अच्छा। ये सामने इस पे लगा रखे। ये अच्छा, ये पपीते के हैं। हाँ जी, इसकी हाइट होती है 4 से 5 फीट बस। तो बड़े हो जाएंगे ना थोड़ी, हाँ, हाँ। तो बैग के साथ ही जमीन में रख रख देंगे। अच्छा, हाँ जी, इसकी बस 4-5 फीट से ऊपर हमारे बराबर ही हाइट होती है बस अब बड़ा होगा पेड़ अभी नहीं, बस ये ऐसे रहेगा, लगेगा। इसमें आने शुरू हो गए ना, देखो ये शुरू हो गए इसके अच्छा, लिए। फूल निकल के। हाँ जी, ऊपर पे पानी दिखाऊंगा, कद्दू है। ऊपर पे लग रखे हैं। अच्छा लगे हुए हैं। हाँ जी, एक आध लगे हैं वहाँ पे। एक तो जमीन सही नहीं है ना, यहाँ पे तो सही है पॉली हाउस के अंदर। छोटी सी जगह में ना कैश क्रॉप लगा रखी है जी। छोटे समय में तैयार हो जाए। अब यहाँ पे चावल लगाते, धान लगाते, गेहूँ लगाते तो बहुत पैसा भी नहीं मिलता इतना, पर इस जगह में अगर हम सब्जी लगाएं या दाल वगैरह की चीज़ें करें तो वो क्या होती है, ज़्यादा कैश क्रॉप है सब यहाँ पे। ये कौन सी ब्रीड है भैया, वनराजा? वनराजा है। वनराजा कितना वेट होता है इसका एक का? इसका वेट हो मुर्गी का हो जाता है 2 से 2.5 किलो। मुर्गे का? मुर्गे का तो अच्छा खासा हो जाता है 3.5 से 4 किलो का एक मुर्गा हो जाएगा। ये शिमला मिर्च है भैया? हाँ, ये शिमला मिर्च है। 60 रुपए 1 किलो में तो 5 टमाटर ही आते हैं, 5 टमाटर कितने सारे लगे। ये क्या नाम था इसका, क्या बोल रहे थे, ग्रीन देखना भैया, सही लगा रखा है। अच्छा, फॉर्मेलिन डाला होगा आपने यहाँ पे? हाँ जी, इसलिए स्मेल आ रही है ना। हाँ, इसमें ला रही है। डालना जरूरी था ना, बोरियों में कीटाणु वगैरह। कोई नहीं, अभी गर्म होने दो, 15 दिन तक 15 वैसी दिन तक जरूरत तो कोई नहीं दिक्कत है। नहीं है। 15 दिन के बाद ना थोड़ी सी इसमें क्या किया ना, हाँ जी, यहाँ से हमने कट कर रखी कट पॉलिथीन। कर रखी है। हाँ ठीक है, इसको उठा देना। हाँ।
ये होता है ना, एक बैग में आपने कितने छेद कर रखे हैं, देखो 1 2 3 4 सबसे निकलेगा। तो इतना न्यूट्रिशन तो होता नहीं ना भूसे में कि सबसे इतने बड़े बड़े हो जाए। तो ये होता है कि जैसे ये ताकतवर होगा तो सारा खींच लेगा न्यूट्रिशन। गर्मी की वजह से होती है, गर्मी की वजह से माइसीलियम टाइट हो जाता है ना, उस कारण होता है। और जैसे ये सफेद हो रखे ना, अब इनमें छोटी छोटी जैसे धूल से घुसेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो सब घुस करके अंदर सब खा जाएंगे। तो इसमें हम उसका छिड़काव कर सकते हैं ब्लीचिंग का, उसका मैं खोल कुछ भी करोगे ना कुछ नहीं हो पाएगा उससे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये वाले डाल दो, ये ना अंदर से नहीं खराब है। तीसरी होगी ये तीसरी है। हाँ तीसरी है ये। तो अब छोटे छोटे निकलेंगे ये वाला तो नहीं बैग है। हाँ ये पहला है। पहला बैग है। इसमें कीड़े, इसमें मतलब थोड़ा बहुत निकाल चुके हैं और ये अब थोड़ा आ रही है। इसलिए नहीं निकल रहा है इसमें ना, इसमें ये कीड़े चले गए थे कीड़े ना, घुस इस गए ना। हिसाब से पिछली वाली आई इसलिए सफेद नहीं हुआ कमरा है। तो आपका बहुत अच्छा ठंडा है, ये गर्म भी नहीं है, पर वो कीड़े हुए ना। अगली बार क्या करना ना, पहले ये सब सामान बाहर निकालो इसका, और कमरे में अच्छे से नुवान होता है उसको बहुत अच्छे से स्प्रे करो। फार्मोलिन भी होगा, दे भी नहीं रहे ना। नुवान नहीं देते होंगे ना, महिलाओं को ज्यादा नहीं देते हैं, तो जो लिक्विड वाला आता है। या वो हाइपोक्लोराइट है जिससे गांव में छिड़काव करते थे कोरोना के टाइम पे, पापा के नंबर से लेना पड़ेगा। तो उसको ना अच्छे से कमरे में स्प्रे कर दो, सारा सामान हटाओ ये। हाँ एक बार हम सब हटाएंगे ना उनके घर में। और क्या करना, डब्बे डुब्बे हटा के अच्छे से लगाओ इसको तरीके से। इससे पहले वाला तो बहुत ज्यादा था, जगह ही नहीं थी उसमें, तो बहुत निकला। हाँ जिसने मैंने आपको बताया था कि 5 किलो निकल गई थी एक दिन में ना, तो वो तो निकल गई थी। अच्छा मतलब इतना तोड़ सकते हैं इन्हें। हाँ ये हो गया, ये देख, तो उसके ऊपर मत देखा करो, जैसे ये ये साइड में देखा करो ना, साइड में कटीले हो गए ये, बस ये तोड़ने के तैयार है आपकी। देखो अब इसके बाद पानी डालोगे ना तो ये कल पीली पड़ जाएगी। जैसे ये है, अब ये छोटी है, पर ये क्या हो गया, कॉर्नर देखो इसके कटीले हो गए, तो तोड़ दिया करो इसको, रख के फायदा नहीं है इनको, इन्होंने खराब ही होना है तो ना। जैसे बैग में ज्यादा होल नहीं करने हैं क्या? ज्यादा होल भी मत करना, मोटे मोटे करना, आपने छोटे भी जैसे करना। कितने की? अब ना, अब क्या करना चाहिए, पेन की नोकी से तो किए, वो ऐसा हो रहा है ना कि वो नोक से नहीं करने, आपने वो गलत कर, मतलब पूरा भैया पेन ही की उससे पैन मोटा करके। हाँ उसी वैसे ही। इस बार क्या करना, जो बैग बनाओगे ऐसा जो बैग है ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 8 छेद करना, और रुई ले लेना, रुई लगा देना छेदों में, तो मक्खी अंदर घुस ही नहीं पाएंगे आपके, तो बैग सफेद हो जाएंगे कम से कम, ये है ना। हाँ ये तो सफेद नहीं एक बार सफेद ही नहीं हुए, इसी कारण नहीं हुए। और थोड़ा इसमें ना जाल, ये इसमें ये मतलब ठोक दो, ये बाहर से ठुकी है। फिर हवा, ये देखो ना, कील से, ये नहीं, ऐसे ठोको इसको यहाँ पे, ऐसे टाइट कर। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल। एक भी मक्खी घुस गई ना तो अंडे दे करके वो एक से पता नहीं कितनी बन जाएगी। ये ना जैसे नीचे डूब जाता है ना, तो इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से केमिकल डाल दिया करो, इसके ऊपर से डाल दो, इसके पानी ऊपर रखा करो, पानी है टंकी ना ना, पानी ऊपर नहीं, ये पानी ऊपर रखा करो। था इतना ऊपर ईंटें मत लगाया करो, ईंटें हल्की होती है ना, मोटे पुस्ते के पत्थर लाना, वो रखना 4-5 बस ऊपर, ठीक है। ठीक है ना। बस आप इसको थोड़ी देर भीगे रहने दो, जब तक है आपका टाइम ना। तो करते हैं। उन्हें पता है इसमें इतनी बैगों से कितना निकाल दिया आपने? इससे कितना निकल गया, 6-7 किलो निकल गया। 6-7 किलो, 7-8 किलो निकल गया। 8 किलो 1600 रुपए का, 200 रुपए किलो देते हैं ना, 250 रुपए के, वाह महंगाई है यहाँ पे, 250 रुपए किलो देते हैं। इन्होंने पहले 250 ही बोला, तो हमने कहा अगर हम रेट घटाएंगे तो ये बोलेगी कि तुम हमारे साथ बोल रहे हो कितना महंगा। अरे डिमांड ज्यादा है और मशरूम कम हो जाती है। देखा था ना 100 ग्राम का था जो 30 रुपए का पैकेट दे हाँ, वो रहे थे, बेचते हैं वो तो दुकान पे। हम लोग हमसे कम लेंगे, तो जो हम हाथों हाथ दे रहे हैं उन्हें, तो हम अपना रेट वही दे रहे ठीक हैं है ना। ठीक इसमें है, हमने चूना भी डाला था। ठीक करा आपने, चूना भी डाल दिया करो थोड़ा ना, बाकी इस बार फिर फॉर्मेलिटी कई लोग ये लेते हैं हम लोगों से, जैसे हम लोगों के अपने ग्राहक है ना, तो अपना तोड़ के जैसे हाँ, लेकर अच्छा तो दे रहे हो, साफ सुथरा माल दे रहे हो, और हाँ, क्या उसी चाहिए। टाइम तोड़ के लेके जाते हैं, मतलब ये मतलब 200 कितने रुपए लगाएंगे ना, 200 250 300 रुपए लगेंगे, 300-350 रुपए। हाँ टोटल हमारा मशीन वशीन सब नहीं लाए ना, मैंने कहा वहाँ से कब तक लाएंगे, से बढ़िया क्यों लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्या है सब चीज़ ना। तो मतलब हम सब अपना नया लग 1000 रुपए तक जगह होती ना, हमने बहुत बड़ा करते रहना। अब सोच रहे हैं कि 3 सेट बनाएंगे ऊपर,
टीन के कमरा भी बनाएंगे तो ये है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग लगाते रहो, ज्यादा नहीं। मतलब ये है कि रोज का भी आपका 1-1 किलो निकल रहा है तो ठीक तो है। और महीने का 6-7-8 हज़ार रुपये में अभी बीज रखा है फ्रिज में, भूसा रखा है, मैंने इसको करके फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा डालना है। मतलब रोज का रोज निकल जाएगा। मैंने हल्दी लगा दी पूरी नीचे, अच्छा, यहाँ सारे में, आगे से लेके यहाँ तक पूरे, जहाँ तक ये भिंडियाँ हैं उसके बाद तो। फिर ये फर्स्ट ईयर से ही क्रॉप दे रहा है ना, ये मैंने लास्ट अगस्त में ही लगाया था। कीवी तो थर्ड ईयर में क्रॉप देगा। अच्छा ये फर्स्ट ईयर में दे रहा है। हाँ मतलब पहले साल में इतना बड़ा हो गया ये, हाँ, है ना? सब में इसको आएगा आपके। कंडीशन चाहिए होती है जैसे जहाँ वो ज़्यादा है। ना धूल जा रही है पास ना। जब निकलने लग जाएगी फिर। हाँ ये तो थोड़ा सा है ना, वो कमरा भी छोटा है, थोड़ा सा है वो। अभी 2-4 दिन लगेंगे ना इसमें। हाँ हाँ, सही है। कमरे तो अच्छे हैं, नीचे ठंडे ठंडे कमरे। हाँ तो पानी भी इसमें कम ही डालना चाहिए वैसे। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम डाल दो। जब लगाओगे ना इसको, हम्म। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि छेद छोटे करना, मतलब कम करना। और जो छेद करोगे ना उसमें रुई डाल देना, हल्का हल्का बाहर से रुई, कि जो धूल है वो अंदर ना घुस पाए। तो एक बार आपका बैग जब पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाएगा ना, उसके बाद तो मशरूम सही निकलती है। वही है उसका। वही है, पर मशरूम अगर सही निकालनी है तो बैग सफ़ेद होना जरूरी है। तो धूल घुस जाएगी तो वो तो सब खा जाएगी ना पहले ही। तो इसलिए तो पहले ही आप क्या करना है इसमें। अरे वही तो, ये तो आप बहुत खराब। पहले फुल पहले की था ना, इसमें तो 750 तो निकल गई थी। कितनी निकल गई थी टोटल? 750 इतनी निकलती है, बहुत तो निकली। अब ये निकल बाद में भी निकलते हैं, बाद में जरूरी नहीं है निकलती है। पर इसमें कीड़े पड़े वो गए जो ना। प्रॉफिट है वो पहले ही हो जाता है आपका ना, हाँ, 60-70 वो किलो तो प्रॉफिट है। हाँ। फिर ये कि थोड़ा बहुत खराब तो होती है, वो तो हाँ। थोड़ा सा देखभाल करो तो ठीक हो जाती है। SPM is State Project Management Unit working under the aegis of Department of Rural Development, Government of Uttarakhand, and basically this unit is focusing towards specific program like livelihoods, rural livelihoods and rural skills. So under rural livelihoods, one of our centrally sponsored program is being executed by this unit, which we call it Uttarakhand State Rural Livelihood Mission, and it is a sister concern of SPMU. So they are working for SHG formation, their above level formation of their above level for federations and community cadres. So another one sector is rural skills. Under this sector, we are focusing for skill development of rural youths. So for rural skill sector, we are executing 2 programs. One is Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, which we call DDU-GKY, and another one is RCT. So RCT is also integral part of NRLM, where this RCT is being executed through banks. So we have 13 RCTs who are looking after this program. This is basically self-employment based skilling program. After providing them technical trainings and all, the banks are also providing them loan and or for setting up their enterprises. So besides all these programs, we are also executing some state sponsored program, likewise Mukhyamantri Palayan Rokthaam Yojana and Mukhyamantri Border Area Development Program. One of the Home Ministry supported program, which we call Border Area Development Program. All these 3 programs are we also executing under SPMU. Thank you, sir. Could you tell us the main challenges you face in your line of work in Uttarakhand? In terms of rural development, I think one of the major challenges is limited employment opportunity in rural areas. Second, the key challenge is typical geographical terrain of the state, and third is migration. So all the 3 components need to be addressed for
development of rural area of Uttarakhand. So we are especially focusing all three component under through executing various development program in the state. सॉल से स्वागत नहीं होगा तब तक नहीं आऊंगा। यहाँ पे घूमने आते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ। और मीनाक्षी जाने पर चले गए, बुला रहे आप आ गए। अच्छा कोई भी समस्या, देखिए हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मिलवा देता हूँ। ये डॉक्टर पल्लवी जोशी हैं, इनका काम है जानवरों से संबंधित। उसके बाद डॉक्टर रजनीश कहते हैं, इनका काम है जो फसलें हैं उनकी उन्नत किस्में क्या है, क्या खासियत है उनकी, उनको क्यों प्रयोग में लाना चाहिए, जिसको प्लांट ब्रीडिंग करें। उसके बाद देखिए डॉक्टर विवेक पाठक, इनका काम है कि फसलों को कैसे उगाया जाए। और हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि जैविक खेती का बहुत रिवाज है आजकल, या बहुत जोर है उसको, इसलिए उस बारे में भी बात आपसे करेंगे। अगर जैविक खेती से संबंधित कोई प्रश्न हो आपको या किसी तरह का समाधान चाहते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। फिर डॉक्टर फूलिया हैं, इनके बारे में बस ये कहूँगा कि ये ऑलराउंडर है हमारी टीम। जो भी कुछ हो, चाहे बाहर बैनर लगाना हो या यहाँ पर सबको जुटाना हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का रिवाज है आजकल, मशरूम के बारे में बात करते हैं, वो सब उनका अच्छा ज्ञान है। फिर डॉक्टर सुकन्या घोष हैं, वो मृदा से संबंधित, अब पिछले दिनों काफ़ी मृदा कार्ड की बात हुई, मृदा क्यों स्वस्थ होनी चाहिए, इस पर बहुत बातें देश में भी शुरू हो गई, तो वहाँ इस बात की ट्रेनिंग है। दूसरा और भी अच्छी बात है कि गृहिणियों का जो घर में काम है उसका इकोनॉमिक इवेल्युएशन किया जा रहा है और उसकी कीमत निकाली जा रही है। जैसे हम एक मजदूर लाते हैं 500 रुपये, है ना, उससे हम चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा काम करे, ना तो बीड़ी पिए, ना आराम से बैठे बीच में काम करते करते खाना ना खाए, तो और भी अच्छा है। जो जमीन हमारी ऐसी है जिसमें कि हमारी जमीन समझ के कुशल जमीन है या बंजर है, अगर ऐसी जमीनों में हम मान लीजिए मेडिसिनल कर लें, जड़ी बूटी कर लें, या राजस्थान में जैसे क्या होता है, जहाँ पर पहले क्या था, मोटे अनाज कोई पूछता नहीं था, रागी मडुआ टिगोरा कोई नहीं पूछता था। आज की डेट में ये शुगर पेशेंट है तो मडुआ की रोटी खाओ, तो मोटे अनाज खाओ, मिक्स आटा है, सारा कुछ है ना। तो इसलिए जब हमारी जमीन जो हमारी जमीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, उस जमीन में हम ये कर सकते हैं। अपने किसानों के समूह बनाओ, ठीक है, कि आप लोग मतलब अगर 20 किसान हैं तो 4 किसान ये काम करें, 4 किसान वो काम करें, 4 किसान वो काम करें, 4 किसान। उससे क्या होगा कि आप जब अपनी उपज को यहाँ से कहीं भेजना चाहो तो मार्केट वाला आपके पास आएगा। अगर आप 1 किलो अनाज उगा रहे हैं, कोई आएगा ही नहीं आपके पास, नहीं आएगा ना। तो समूह में क्या होता है कि अगर आपके पास वही चीज़ 1 क्विंटल में है तो डेफिनेटली आपको लोग आके बोलेंगे हाँ जी हम आपसे लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समूह बना के किसानी करनी, समूह बना के कृषि को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। नमस्कार और अभिनंदन सरकार की आप लोगों ने सुनने के लिए आए। एक्चुअली ये लोग तो बाहर से हैं और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मेरा घर विकास में रहते हैं, तो मैं भली भांति परिचित हूँ इस एरिया से और इस इलाके में क्या समस्या है। मैंने प्रधान जी से थोड़ी देर पहले बात की, तो जो समस्या यहाँ है ऑलमोस्ट वही समस्या हमारे यहाँ भी है। मुख्य समस्या ये है कि लोग किसानी छोड़ रहे हैं, तो हमें किसी तरह से जो हमारी नई जनरेशन है उनको मोटिवेट करना है कि वो कम से कम किसानी करे, क्योंकि अगर सब लोग किसानी करना छोड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या। भविष्य में ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि हमें जो नौकरी करनी है ना, हमें
अब यहाँ जितने लोग होंगे उनके बच्चे कोई बीटेक कर रहा हो, ज्यादातर लोग उनके बीटेक कर रहे होंगे, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम नहीं बताते कि आपको किसानी करनी है, हम सिखाते नहीं बच्चों को, जबकि हम इस तरीके से बता सकते हैं बच्चों को कि आप मॉडर्न तरीके से किसानी करें, आप पॉली हाउस लगाओ, आप कुछ ऐसी इसमें उगाओ जिससे आपको फायदा मिले। उसने कहा कोई ये बता सकता है कि क्या डायबिटिक आदमी को च्यवनप्राश खाना चाहिए या नहीं? क्योंकि डायबिटिक में तो आप शुगर नहीं खाएंगे, च्यवनप्राश को शुगर क्या खाना चाहिए या नहीं? पहली बात आयुर्वेद क्लेम करता है ना कि मैं आयुर्वेद के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उसका तर्क बता रहा हूँ। दूसरी बात उसने कहा अगर खाना चाहिए तो एक आदमी को अगर वो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है कितनी मात्रा में खाना चाहिए? 2.5 ग्राम का है, 2 चम्मच का, 6 चम्मच का है, 1 चम्मच, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं 1 चम्मच और 2 चम्मच, ये सारी चीजें विज्ञान के हिसाब से वो मायने नहीं रखती। चम्मच कितनी बड़ी हो, मेरे घर में इतनी बड़ी चम्मच है, मेरे के घर में इतनी बड़ी चम्मच है। दूसरी बात और भी जो खतरनाक है, हमारे देश में अभी तक औषधीय पौधे जंगलों में थे और लोगों ने वहां से नोच के उन सारे औषधीय पौधों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब ना तो हमारे पास औषधीय पौधों की डाइवर्सिटी विभिन्नताओं की कोई सूचना है अच्छी, ना उनकी अच्छी किस्म की पौध हमारे पास। हम जो भी पौधे लगाते हैं वो बस जहाँ से मिल गया वो लगाते हैं। तीसरी बात जो और भी किसानों के हिसाब से श्रीमान कह रहे थे कि छोटे किसान लगाएं, देखिए मैं आपको बता दूं छोटे किसान कम लगाएंगे जब उनके पास किसी भी किस्म का बाजार हो। अगर बाजार नहीं है तो क्यों लगाएंगे? सबसे बड़ी बात है हम बिना बात हम क्या कर रहे हैं, मैं इनके संदर्भ में नहीं कह रहा, आमतौर पर फैशन जैसे DSR आ रहा है, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस या पैडी, वो क्यों आया? क्योंकि धीमे धीमे आपको पता नहीं मालूम है नहीं 400 बिलियन गैलन पानी भूमि के अंदर जाता है, 400 बिलियन गैलन, बहुत बड़ी मात्रा जब पानी, उसमें से 270 बिलियन केवल कृषि उपयोग करते हैं, करीब करीब 3/4 पानी। अब उसमें लोगों की और जरूरतें भी हैं जो पूरी हैं, जैसे लोगों को पीने का भी चाहिए, नहाने का भी चाहिए, जीवों के और कार्यक्रमों के लिए भी उसको पानी चाहिए, वो उपलब्धता धीरे धीरे कम होगी। और इसलिए आप ध्यान दीजिए, अब ये बोतल मेरे सामने रखी है क्योंकि मैं बाहर के नल का पानी नहीं दे सकता। अभी आपने बहुत सुंदर बात कही कि हमारी जो नदी का स्रोत था वो सारा का सारा खराब हो गया, कभी पीने के लिए यूज किया बिल्कुल। अब आप देखिए ना बोतल मैं किसान की बात कर रहा हूँ और बोतल से पानी पी रहा हूँ, मतलब कितने दुख की बात है। हमारी जो मानसिकता बन गई, क्या गारंटी है कि पानी शुरू होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये बात हुई कहते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे दूँ, न्यूयॉर्क में जो पानी आता है, न्यूयॉर्क अमेरिका की एक बड़ा शहर है, उसके अंदर जो पानी आता है वो करीब 275 किलोमीटर दूर से आता है और वो इस तरह के एरिया से आता है जहाँ पानी की उपलब्धता है। पर वहाँ के लोगों ने मिलकर इस बात को तय किया हुआ है कि उस क्षेत्र में कभी भी किसी किस्म का डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हुई, जैसे कि मकान बनाना। हमारे यहाँ पानी के स्रोतों को लेकर कोई बात ही नहीं करता, मिल रहे हैं ठीक है, नहीं मिल रहे तो भी ठीक है, गंदा मिल रहा तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में चाहे औषधीय पौधे हों, चाहे पानी हो, चाहे कृषि हो, उसके बारे में आम आदमी का ज्ञान बहुत कम है। स्लम एरिया है, जो बच्चे बहुत सारे रीजन से स्कूल नहीं जा पाते। अभी हम स्कूल से आ रहे सारे, तो 135 बच्चे आज हमारे पास है जिनको हम निःशुल्क सेवा देते हैं। और वो जो मतलब मेरा सोर्स इनकम है, मैंने गाय रखी है और गाय की जो दूध से मतलब जो भी पैसे आते हैं मैं उन बच्चों को लगाती हूँ। अकेले कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते, मैंने अकेले शुरुआत की थी।
क्योंकि मैंने सर्वे किया था उस एरिया का। जब वो बच्चे मेरे घर पे आए थे, मैंने सिलाई सेंटर खोला था फ्री में। मैं कहा चलो यहाँ पे महिलाएं खाली बैठी हैं, गप लगा दी है, इधर उधर चुगली करे, क्यों नहीं इनको सिलाई सिखाई जाए। तो मैंने फ्री में उनको सिलाई सिखाई। मैं खुद नहीं अभी मैम, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ भाई क्या है, कुछ नहीं है, मैं सिखाऊंगी, मैं फ्री में सिखाऊंगी। और मैंने सिखाया। उस एरिया से कुछ लड़कियाँ मेरे पास आई, मैंने कहा बेटा क्या नाम है, कह रहे मैम रीना नाम है, संध्या नाम है। मैंने तो अपना नाम लिखो, कह रहे हमें आता ही नहीं है। मैं कैसे लगते थे, बड़े बड़े बच्चे हो, कह रहे मैंने कहाँ से आओ, कह रहे उस एरिया से। तो मेरे साथ और भी टीमें जुड़ी थी। मैं कह चलती है वैसे कौन से एरिया गए, तो वहाँ पे 80% बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, बाल मजदूरी करते हैं वहाँ पे, उनका बाल शोषण होता है वहाँ पे लड़कियों का। तो आज के डेट में कम से कम कुछ नहीं तो उनका बाल शोषण नहीं हो रहा। हमारे पास बच्चे पढ़ रहे, कभी आओ और रियल में देखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो जो काम है वो मैंने स्टार्टिंग अपनी शुरुआत की थी, और आज हमारे साथ बहुत है ऐसी बात है। और कर सकते हैं अकेले सेलाकुई में बिल्कुल आना। और हकीकत में मैं किसी से सपोर्ट, मतलब मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब सिंपल सी औरत हूँ, लेकिन एक मन होता है कि कुछ बदलाव लाना है। अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो कभी चोर के पैदा नहीं होंगे, कभी मर्डर नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक बच्चे को सुधारते हो, मैं मानती हूँ कि वहाँ के 100 बच्चे सुधरते हैं। अगर हम 10 बच्चे को, अगर वहाँ के 10 बच्चे बिगड़ते ना, तो 1 लाख बच्चे बिगड़ते हैं वहाँ के। क्योंकि वहाँ पे 90% बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में धूम्रपान करके नशा करते हैं, और लड़कियों को ज़्यादा शोषण होता है वहाँ पे, और उसको हम रोकते हैं। पूछो मैम को हमारे साथ बैठे, हम 10 जगह से हमने वहाँ जगह चेंज कर दी, क्योंकि कोई नहीं चाहता वहाँ पे कि हम वहाँ पे आए। मैं आपकी पूरी फीलिंग समझ रहा हूँ। एक्चुअली हम पन्नगर से, तो हम वहाँ पे एक NGO चलाते थे, चाइल्डहुड एनहांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, चेतना नाम की एक NGO हुआ करती थी। तो हम भी वहाँ के जो स्लम्स के बच्चे जो नहीं जा पाते थे, ट्यूशन नहीं जा पाते थे, अगर स्कूल कहीं चले भी जाते थे, हम शाम को जाके उनकी ट्यूशन लेते थे हर दिन। डिफरेंट ये लगा रखे थे। मैं आपने सुना चेतना, हाँ, तो मैं उसके जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। क्या होता है ना सर कि खुद भी जाना होता है, चाहे धूप हो बारिश हो, कभी कभी पैदल भी जाना होता है। हमको जब रिक्शे नहीं मिलते, जो भी काफी दूर है मेरे घर से, हम तो वहीं के लोग हैं, लेकिन जाना है तो जाना है, क्योंकि मन में ठान रखे कुछ बदलाव लाना है, कुछ बदलाव लाना है। अभी भी मैं स्लम एरिया में जाते हैं ना, तो जैसे अपने भगवान को इज्जत देते हैं ना, वैसे मिलती है। बिल्कुल, उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। और एक प्रयास है हमारा छोटा सा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसे नहीं, हम औरतें हैं, घर का काम भी करते हैं। मैंने तो मैंने गाय रखी है, उन बच्चों के लिए रखी है, वहाँ से जो भी पैसा था उन बच्चों को लगाती हूँ, क्योंकि मैं आज आपसे लूँगी, लेकिन कब तक लूँगी आपसे, कब तक कोई मदद करेगा नहीं। मैं अपने हस्बैंड से नहीं लेती मदद, फिर मैं औरत से क्या लूँगी, मैं अपने बेटों से मदद नहीं लेती हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरा मन है कि समाज में कुछ करने का, क्या पता आप लोगों का मन ना हो, तो मैं अपने हस्बैंड तक से मदद नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैं कहीं लोग बोलती कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो बोला है ना, हम में से 10 नहीं तो कम से कम 1 तो ऐसा होगा जो मोटिवेट हुआ है। क्योंकि कर सकते हैं, और कर सकते हैं, कुछ ठान लिया ना मन में कि हम कर सकते हैं, बदलाव हम ही लोग लाते हैं। घर का काम भी करते हैं, घर का पूरा काम करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे उस काम की वजह से मेरे घर में कलेक्शन, मैं 4 बजे उठूंगी, सारे घर का काम करके फिर वहाँ स्कूल में भी जाती हूँ, और गाड़ियों को भी करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वही तो मेरा सोच नहीं होगा। मैं अगर उनको छोड़ूंगी तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगी, ये चीज़ है। जानवर की बहुत ज़्यादा विशेषता है, हमारे ग्रंथों में भी बहुत बार बताया गया है। और गाय को तो हम माता मानते हैं, और शायद इसीलिए वो उन बच्चों को पढ़ा पा रही हैं उसी की बदौलत। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो बदरी गाय मिलती हैं, आप उसकी रक्षा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्सी और हॉल्स्टीन गायों के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, पर उनसे हमारे यहाँ काफ़ी बीमारियाँ भी हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में एलर्जीज होती है, वो एलर्जी किसी और की वजह से नहीं, उसी दूध की वजह से हो रही है, क्योंकि वो जो गाय हैं वो हमारे प्रदेश में रहने लायक नहीं है। हम उन्हें, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, तब वो अपने साथ उनका दूध पाने के लिए लेके आए थे, और हमारी जो देसी नस्ल थी वो खराब हो चुकी है। आजकल A1 A2 का लोगों को नहीं पता होगा, पर ऐसा मार्केट में 70 रुपये 80 रुपये तक का दूध बिक रहा है, क्योंकि जो हमारी गाय है उसे हम 40-50 रुपये किलो में दूध बेचते हैं।
तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि उत्तराखंड में स्पेशली बिकॉज मैं जो जहाँ तक देख पा रही हूँ वहाँ तक जो नारी है वो भी खेती वो भी जानवरों को पालन करें, तो आप घर में रह के जानवरों को पालन कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि आप अपने दूध को किसी भी सुपरमार्केट में 70 रुपये से 80 रुपये तक बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ मुर्गी पालन, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी भी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटी सी जगह में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन के लिए अग्रसर होते हैं तो एक अंडा शायद हम 10 रुपये या 12 रुपये में बेचते हैं। उसी से जिस तरीके से वो गाय का दूध बेच रही है, अगर हम देसी अंडों का व्यापार शुरू करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, उन्हें कुछ नहीं डालना, जो आपके घर में बनता है उसी से आप उन लोगों को पाल सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा व्यापार है जो आपके घर से निकलता है। मैं मशरूम का काम कर रही हूँ। मशरूम मैंने छोटा प्लांट लगाया है, अपने ही घर में लगाया था, उसी को कर रही हूँ मैं पिछले 2-3 सालों से कर रही हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ कि जो समूह की 2-3 महिलाएं और हैं करने की इच्छुक, तो उनके साथ मिलकर उसको बढ़ाऊँ मैं। आज से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से रिलेटेड आपको कुछ लोग होते हैं जो नहीं सभा में बोल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअल लेवल आप मुझसे पूछिए या फिर आने वाली ग्रुप में जुड़िए आप, ठीक है। मैं एक ग्रुप भी फॉर्म कर दूँगी, आज के जितने भी लोग हैं इनका एक ग्रुप भी व्हाट्सएप पे बनाऊँगी। भविष्य में जहाँ जहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लोकेशन पे होगी, हो सकता है आसपास की किसी और जगह पे हो, तो उसकी आपको सूचना कहाँ से मिलेगी, उस ग्रुप से मिलेगी। तो उस ग्रुप से जुड़े रहिए और आपके जो भी सवाल हैं एक्सपर्ट भी उस ग्रुप में रहेंगी, वो आपका उस मैसेज के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होंगे तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन पहाड़ी फाउंडेशन के साथ जो मेरा परिचय है वो करीब 6 महीने पुराना है, और वो इस संदर्भ में हुआ कि हम लोग मिलजुल के, क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय हैं और वो एक NGO है, तो हमने सोचा कि हम लोग मिलजुल के कुछ काम करेंगे, विशेषकर उत्तराखंड के भले के लिए। और जहाँ तक मुझे याद आता है, इसकी जो फाउंडेशन है वो 2019 का है, और ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पे औरतों का जो सशक्तिकरण है उसको लेकर इनका काफ़ी काम है। और इनके काम की वजह से 2 विभाग उत्तराखंड के, एक हॉर्टिकल्चर और दूसरा एग्रीकल्चर, इनके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड के। और ये कई क्षेत्र जैसे मशरूम की पैदावार या मधुमक्खी पालन है या बैम्बू है, इनके बारे में लोगों को अपना जो टेक्निकल नॉलेज है वो शेयर करते हैं।